how you guys doing? Hope you're doing well. And so let's start with Act 1, Scene 2 of Merchant of Venice. In Act 1, Scene 1, we have seen Antonio, Gratiano, Cilario, Solanio, then Lorenzo and a few other characters. Here we shall be introduced with two main characters like Portia and Nerissa. Portia is the lady whom Bassanio wants to marry, and not only Bassanio but many other suitors who have come to Belmont in order to woo Portia to win her hand in marriage. Her father had proposed a system of caskets. That is, Portia's father had arranged a system of caskets in which there shall be three types of caskets: gold, silver and lead. Gold, silver and lead. And the suitor, that is the person who chooses the right casket, shall have the right to marry Portia. So let's start with it. Portia and Nerissa actually talk about the test which the other suitors must take in order to win Portia's hand in marriage. Some men have already come to Belmont in order to marry her, in order to win the game of caskets as devised by Portia's father. But when Portia describes them, she makes fun of the suitors. She mocks the suitors really. And it is a humorous scene in comparison to the previous scene where we see the gloomy atmosphere or the surrounding of the great merchant Antonio. Here it shall be a light scene. So what does Portia say? By my troth, Nerissa, my little body is weary of this great world. Portia is very much tensed about the future she might be having, because her father had devised such a test which no normal person, no ordinary person could pass actually. और यहाँ पर पोर्शिया भी कहती है कि मेरी जो so called I am worried of what will be my future. I am worried of the suitors. मैं उन suitors में किसी को पसंद नहीं करती. अगर किसी ने भी right casket को choose कर लिया तो I would have to accept him as my husband. So Portia tells, by my troth, Nerissa, my little body is weary यानी tired of this great world. Nerissa बोलती है, आप tired होती, आप sad होती, आप depressed होती, अगर आपके misfortunes, if your miseries were as equal, were in the same abundance as your good fortunes are. Nerissa यहाँ पे यह कहना चाहती है कि पोर्शिया के good fortunes यानी so called अच्छे कर्म, अच्छी बातें इतनी हैं जो कि मैच आउट यानी जो कि ओवरटेक कर देती है बैड क्वालिटीज को, बैड so called बैड फॉर्च्यून्स को, बैड लक को. पोर्शिया का इतना गुड लक है. नेरिसा बोलती है कि जिस आदमी के पास बहुत ज्यादा है वो भी सैड है, और जिसके पास एकदम भी नहीं है, जिसके पास जीरो है वो भी टेंस्ड है. जिसके पास ज्यादा है वो डिमांड करता है और ज्यादा के लिए, लेकिन जिसके पास बहुत कम है या जीरो है वो हमेशा ज्यादा के लिए और थोड़े के लिए डिमांड करता है. सो यहाँ पर नेरिसा कहती है कि जिसके पास इनफ है यानी उसके हिसाब से उसके पास इतना है कि वो अपना जीवन आराम से रह पाए, वही मनुष्य एकदम सुखी है, वही मनुष्य एकदम सो कॉल्ड गुड फॉर्च्यून्स ही उसके पास है एकदम. पोर्शिया कहती है कि अच्छी बात कही है, और नेरिसा बोलती है कि हाँ ये सब अच्छी बातें तो हैं, अगर ये सब अच्छी बातें तब होंगी जब हम इन बातों को हमारे जीवन में यूज करेंगे. अब पोर्शिया एक स्पीच दे दी है. If to do were as easy as to know what were good to do, chapels had been churches and poor men's cottages princess palaces. It is good divine that follows its own instructions. पोर्शिया कहती है कि अगर कुछ करना उतना ही इजी होता जैसे हम कुछ बोल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल हाउ टू गेट 100% इन ICSE एग्जामिनेशंस, मैंने जस्ट बोला, लेकिन जब तक वो मैं अपने जीवन में यूज ना कर लूं तब तक मुझे वो काम कैसे करना है मुझे पता नहीं चलता. इसलिए कहते हैं कि काम करना बहुत मुश्किल होता है बोलने से. बोल तो कोई भी सकता है लेकिन काम करना बहुत कम लोगों को आता है. अब पोर्शिया कहता है कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपनी बातें अपने में इंप्लीमेंट करता है, जो अपनी बातें अपने जीवन में, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है.
पोर्शिया कहती है मैं उन 20 लोगों में होऊंगा जो दूसरों की बात सुनूंगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं होऊंगा जो अपनी बातों को खुद फॉलो करूंगा, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टास्क टू डू, टू फॉलो। अब पोर्शिया बोलती है कि द ब्रेन में डिवाइस लॉस फॉर द ब्लड, बट अ हॉट टेम्पर लीप्स ओवर कोल्ड हिस्ट्री, सच हियर इज मैडनेस, दैट इज द यूथ, to skip over the measures of good counsel, the cripple. But this reasoning is not the passion to choose me a husband. Oh me the word choose, I may neither choose who I would not refuse, who I dislike. अब पोर्शिया बोलती है कि जो यंग पर्सन होते हैं ना, जो यंग पर्सनैलिटीज होते हैं, एक यंग पर्सन किसी की बातें नहीं सुनता, वो जस्ट एक हेयर जैसा होता है, मतलब एक खरगोश जैसा होता है, कभी भी रुकता नहीं, हमेशा लीप करते 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 आगे चला जाता है, हमेशा अच्छी एडवाइस को नजरअंदाज करके, अच्छी एडवाइस को टाल के वो हमेशा आगे बढ़ जाता है, जैसे कि एक हेयर करता है, यानी एक खरगोश करता है। वैसे ही हमारे ब्रेन हमारे लिए बहुत से बातें कह देगा कि ब्रेन बोलेगा ये कर लो, ये कर लो, लेकिन उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमें चूज करना है। लेकिन यहाँ पर पोर्शिया कहती है कि मेरे फादर जो भी डेड है वो मेरे विशेस को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए पोर्शिया कहती है कि मैं उस मनुष्य को भी नहीं चूज कर सकता जिसे मैं चाहता हूं वो मेरा हस्बैंड बने, और मैं ना ही उसी मनुष्य को रिफ्यूज कर सकता हूं जिसे मैं एकदम पसंद नहीं करती। अब पोर्शिया कहती है सो इज द विल ऑफ ए लिविंग डॉटर इज कंट्रोल्ड बाय द विल ऑफ ए डेड फादर। कर्व यहां पर जो टर्म है उसका मतलब है कंट्रोल। नेरिसा, योर फादर वाज एवर वर्चुअस। अब नेरिसा बोलती है कि आपके फादर जो हमेशा से ही बहुत ही वर्चुअस पर्सन है, बहुत ही रिलीजियस, हॉली, बहुत ही अच्छे किस्म के पर्सन रह चुके हैं, और जो अच्छे पर्सन होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस बिलीफ्स, वो अपने डेथ बेड पर जब वो मरने वाले होते हैं वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं ना जो कि हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करने से बहुत ही अच्छी होते हैं। जैसे कि उसका डेथ बेड पर पोर्शिया के फादर ने बोला था कि वो 3 कास्केट्स चूज कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर और लेड, और जो सूटर, जो आदमी ठीक कास्केट को चूज करेगा वही पोर्शिया का हस्बैंड हो पाएगा। और यही बात नेरिसा फिर से दोहरा रही है। पोर्शिया कहती है कि तुम उन सूटर्स का नाम बोलो ताकि मैं अपनी भावनाएं उनके प्रति दे सकूं, अपनी फीलिंग्स जो मेरे अंदर है उनके प्रति दे सकूं मैं। अब नेरिसा बोलते हैं फर्स्ट देयर इज ना नियोपॉलिटन टेंस। पोर्शिया बोलते हैं कि हाँ वो तो एक नंबर का घोड़ा है, क्योंकि वो कुछ बात नहीं करता, बस यही बात करता है कि उसे अपने हॉर्स को शू करना आता है, SHOE शू करना आता है। और पोर्शिया मॉकिंगली ये भी कहती है कि मुझे शक है उसकी मदर का किसी दूसरे मतलब पर्सनालिटी के साथ, दूसरे किसी पर्सन के साथ चक्कर चल रहा है। पोर्शिया जस्ट मॉकिंगली फन के लिए बोलती है ये बात, ताकि वो अपनी भावनाएं नियोपॉलिटन प्रिंस के ऊपर दे सके। अब नेरिसा बोलती है कि देखो दूसरा जो शूटर है उसका नाम है काउंटी पैलेटाइन। पोर्शिया बोलती है कि वो कुछ नहीं करता, बस उसे गुस्सा करना आता है, और उसके अंदर इतना दुख भरा है ना इतने यंग एज में कि पोर्शिया वरी करे, पोर्शिया टेंस है कि जब तक वो बूढ़ा होगा वो वीपिंग फिलोसोफर ना बन जाए। यहाँ पर वीपिंग फिलोसोफर का एक रेफरेंस दिया गया है। वीपिंग फिलोसोफर एक्चुअली हेरिक्यूटस का बोला गया है। हेरिक्यूटस कौन था? एफेसस का सन। हेरिक्यूटस मनुष्य के यानी हम लोगों के मतलब पर्संस के जो ह्यूमन लैंड है उनके कामों से इतना ही मतलब स्ट्रेस्ड हो गया था, ह्यूमंस की स्टुपिडिटी से इतना ही स्ट्रेस्ड आउट हो गया था कि वो माउंटेन्स पे अकेला चला गया था अपना रेस्ट ऑफ लाइफ रहने। इतना ही गधा था काउंटिंग मतलब ये हेरिक्यूटस जो एफेसस का सन था। वैसे पोर्शिया फेयर करती है कि उसके अंदर जो सैडनेस है वो सेम टू सेम वही सैडनेस काउंटी पैलेटाइन के अंदर है। एंड फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड। अब पोर्शिया ये भी बोलते हैं मॉकिंगली कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, उसके जगह मैं किसी एक स्कल के साथ शादी कर लूंगी, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। अब नेरिसा बोलती है कि अगर तुम्हें इन लोगों में से किसी को पसंद नहीं आ रही है छोड़ दो। अब बोलो फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लीबॉन के बारे में तुम्हारे क्या फीलिंग्स है? पोर्शिया बोलती है कि अच्छा गॉड ने उसे बनाया है इसलिए मैं उसे एक मैन का दर्जा, मैन का रिस्पेक्ट दे रही हूं, बट आई नो इट इज अ सिन टू मॉक। मुझे पता है कि किसी के बारे में भला बुरा कुछ बोलना एक सिन होता है, किसी के बारे में मॉक करना एक सिन होता है।
लेकिन मैं क्या बोलूं, उसे सिर्फ यही बोलना आता है कि मेरा हॉर्स जो है नियापोलिटन प्रिंस से बढ़िया है, उसका हॉर्स नियापोलिटन प्रिंस से बढ़िया है। उसका एक बहुत ही घटिया हैबिट है काउंटी पैलेटाइन से भी एंग्री होना का, उसे ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है काउंटी पैलेटाइन से भी। उसके अंदर खुद की कोई क्वालिटीज नहीं है, उसके अंदर दूसरों की क्वालिटीज है। और पोर्शिया ये भी मॉकिंगली बोलती है, फनी एक टोन में बोलती है कि ही इज नो मैन इन, ही इज एवरी मैन इन नो मैन। उसके अंदर अपनी क्वालिटीज कुछ नहीं है, उसके अंदर दूसरों की क्वालिटीज भरपूर है। सो पोर्शिया बोलती है कि अगर कोई थ्रॉस्टल एक बर्ड होता है, ठीक है ना, अगर कोई थ्रॉस्टल गाता है तो वो अपने शैडो के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, ऐसे ही मतलब पागल पागल काम करना शुरू कर देता है वो। और पोर्शिया बोलती है अगर मैं उससे शादी करती हूँ इसका मतलब होगा मैं 20 हस्बैंड से शादी कर रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर खुद की कोई क्वालिटीज है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ दूसरों की क्वालिटीज भरपूर है। सो ही इज एवरी मैन इन नो मैन। नेरिसा बोलती है कि अच्छा बोलो फैल्कन ब्रिज के बारे में तुम्हारी क्या फीलिंग्स है, जो कि यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड है। पोर्शिया बोलती है अच्छा वो ठीक आदमी है, वो हैंडसम है, एक प्रॉपर पिक्चर है, सब ठीक है, लेकिन उसे बाकी सब लैंग्वेजेस आती है, लेकिन मुझे जो लैंग्वेज आती है उसे वही नहीं आती। मतलब एक डम्प पर्सन के साथ कौन बात कर सकता है। और नेरिसा को भी बोलती है कि उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, लेकिन पोर्शिया को इंग्लिश नहीं आती, पोर्शिया को 1 रुपए के बराबर भी इंग्लिश नहीं आती। सो वो कोर्ट में जाके उसके सामने क्या बोलेगी, मतलब जब शादी होने के बाद उसके सामने क्या बोलेगी, उसके सामने गूंगा रहना पड़ेगा, कोई भी बात नहीं कर पाएगी। सो हाउ इज इट पॉसिबल टू नेवर टॉक टू अ हस्बैंड, क्योंकि कोई कॉमन लैंग्वेज ही वो नहीं शेयर कर पाते हैं। अब नेरिसा बोलती है अच्छा बोलो स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में तुम्हारी क्या फीलिंग्स है, उसका नेबर जो है फैल्कन ब्रिज का नेबर स्कॉटिश लॉर्ड। अब पोर्शिया बोलती है वो बहुत ही एक डरपोक इंसान है, कावर्ड पर्सन है। अब देखो क्या है, जब मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया था ना, उस समय स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो था वो अलग अलग थे, जो अलग अलग थे। अब फ्रेंचमैन जो था, फ्रेंच, वो दूसरा उन जो क्या बोलते हैं स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जब भी कोई झगड़ा होता ना, तो फ्रांस आ जाता और बोलता कि मैं तुम्हारा साइड ले रहा हूं और मैं जब भी एबल होऊंगा उससे रिवेंज लूंगा, लेकिन हार्डली अपना प्रॉमिस कभी रखता था। सो पोर्शिया ये कहती है कि स्कॉटिश लॉर्ड जो है बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। अब नेरिसा बोलते हैं हाउ लाइक यू देन द यंग जर्मन ड्यूक ऑफ सैक्सन इज नेफ्यू, उसके बारे में तुम्हारी क्या भावनाएं हैं। पोर्शिया बोलती है वेरी वाइल्ड इन द मॉर्निंग व्हेन इज सोबर एंड मोस्ट वाइल्डली इन द आफ्टरनून व्हेन इज ड्रंक, व्हेन इज वर्स्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बीस्ट इन द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट गो विदाउट हिम। पोर्शिया बोलती है कि जब मॉर्निंग होती है वो ठीक है, ओके ही इज अ नॉर्मल मैन, बट आफ्टरनून होते ही ना होते वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है एंड ही इज नो लेस देन अ ड्रंक मैन। और जब वो बेस्ट होता है, जब वो ड्रिंक किया हुआ नहीं रहता है, तब वो एक जानवर, तब वो एक ह्यूमन से थोड़ा सा बुरा होता है। जब वो ड्रिंक करा हुआ नहीं रहता है, ये यंग जर्मन ड्यूक ऑफ सैक्सन इज नेफ्यू, तब वो एक नॉर्मल मैन से थोड़ा सा नीचे लेवल है, और जब वो ड्रंक रहता है वो बीस्ट एक एनिमल से थोड़ा सा अच्छा रहता है। मतलब सोचिए लोग कितना घटिया किस्म का आदमी है पोर्शिया जैसे डिस्क्राइब कर रही है। पोर्शिया इज जस्ट मॉकिंग अबाउट द सूटर्स हु हैव कम टू woo her to win her hand in marriage। अब पोर्शिया बोलती है कि मैं उसके बिना अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। नेरिसा बोलती है कि अगर वो ठीक कास्ट चूज कर ले तो क्या करोगी। अब पोर्शिया बोलती है कि अगर ऐसा होता है उसके पहले मैं कुछ प्रिकॉशन लेना चाहती हूँ। अब जैसे कि पोर्शिया बोला है कि जो ड्यूक ऑफ सैक्सन नेफ्यू था, यंग जर्मन था, उसे ड्रिंक करने का बहुत शौक था। अब पोर्शिया बोलती है वो एक एक्सपेंसिव वाइन जो है, रेनिश वाइन जिसे बोला गया है, वो क्या करेगी पोर्शिया, एक गलत कास्केट के ऊपर रख देगी। और अगर ड्यूक ऑफ सैक्सन नेफ्यू के अंदर वो भावना रहेगी कि वो ड्रिंक करना चाहता है, तो वो गलत ही चूज करेगा और पोर्शिया बच जाएगी। अब पोर्शिया बोलती है कि मैं स्पॉन्ज से शादी कर लूंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी, आई विल बेटर बी अनमैरिड। अब नेरिसा बोलती है कि नेरिसा एक सरप्राइज सॉर्ट ऑफ देती है पोर्शिया को कि तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है, तुम अपना टेंशन थूक दो, तुम अपना सैडनेस छोड़ दो, क्योंकि जो भी सूटर्स थे ना वो डर गए हैं तुम्हारा जो इंपोजिशन। एक्चुअली पूरा जो लॉटरी कास्केट था ना उसके अंदर क्या था,
मैं पहले से बताते रखता हूं क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो बाद में आएगा, फिर भी बता के रखता हूं आप लोगों को। पोर्शिया के फादर ने ये प्लान करा था कि अगर तीनों कास्केट में से एक कास्केट ठीक है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन कौन सा कास्केट ठीक है वो अगर वो सूटर डिसाइड नहीं कर पाता है तो वो जीवन भर शादी नहीं करेगा, ना ही किसी स्त्री को ना ही किसी वुमन को वो बात करेगा इन वे ऑफ मैरिज कि किसी को भी वो मैरी नहीं कर सकता अगर वो रॉन्ग कास्केट चूज करता है। इसी वजह से बहुत लोग डर गए थे। इसके चलते वो नेरिसा ने बोला कि इसके चलते ही वो सूटर्स मेरे पास आए और बोला कि मैं पोर्शिया को और दुख नहीं देना चाहता, उसे और परेशान नहीं करना चाहता अपने मेहमानबाजी से, इसलिए मैं चला जा रहा हूं और तब तक नहीं आऊंगा जब तक पोर्शिया को किसी और मीन्स से, पोर्शिया की किसी और तरह से मैं जीत ना पाऊं इन वे ऑफ मैरिज, सो बाय बाय। अब पोर्शिया बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं सिबिला, सिबिला कौन थी? वो एक प्रोफेटस थी क्लासिकल माइथोलॉजी में, जिसे अपोलो गॉड ने एक विश दिया था, एक बून दिया था कि तुम जितना नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड अपने हैंड में होल्ड करोगी उतना लंबा तुम्हारा लाइफ होगा, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है कि मैं लगता है सिबिला जैसी लंबी तो रहूंगी, उसके जैसे लंबा आयु मेरा रहेगा, मेरा एज उसके जैसा ही रहेगा, लेकिन आई विल डाई एज अ वर्जिन बिकॉज मेरी शादी नहीं होगी। एंड हु इज डायना? डायना इज द क्लासिकल गॉडेस ऑफ वर्जिनिटी। अब पोर्शिया कहती है कि मैं उसके जैसा वर्जिन डाई करूंगी लेकिन लिव एज लॉन्ग एज सिबिला, क्योंकि मुझे और किसी मीन से तो जीता नहीं जा सकता और पापा का जो शर्त है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। अब नेरिसा एक लड़के, एक ह्यूमन, एक मर्द का नाम लेते हैं जिसका नाम सुनते ही पोर्शिया के मुंह पे मुस्कान सी आ जाती है। नेरिसा बोलती है कि डू नॉट रिमेंबर लेडी, इन योर फादर्स टाइम अ वेनिशियन, अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर दैट केम हिदर इन कंपनी ऑफ द मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेरेट। आपको क्या ना पता कि आपके समय जब आपके पापा जिंदा थे तब एक वेनिशियन जो था, एक यानी एक वेनिस में रहने वाला लड़का, एक वेनिस में रहने वाला एक ह्यूमन, वेनिस, अ स्कॉलर, अ सोल्जर जो आता था मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेरेट के साथ पापा आपके घर में जब आपके पापा जिंदा थे। पोर्शिया बोलते कि यस यस इट वाज बसानियो। देखिए पोर्शिया का जो फीलिंग फॉर बसानियो हैज कम आउट हियर। इसके पहले सीन में हमने देखा था बसानियो ने बोला था कि पोर्शिया उसे लगता है सीक्रेटली लाइक करती है, बस बसानियो वाज नॉट श्योर। वी कम हियर टू द पॉइंट दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट पोर्शिया wants बसानियो एज अ हस्बैंड, बिकॉज पोर्शिया सबको इंसल्ट करती है, सबको मॉक करती है, लेकिन बसानियो का नाम एक इंस्टेंस में याद आ जाता है उसको। अच्छा, तो पोर्शिया बोलती है यस ही इज वेल वर्दी ऑफ प्रेज। अब तभी एक सर्वेंट आता है और सर्वेंट बोलता है कि एक न्यूज है, एक प्रिंस जो है, प्रिंस ऑफ मोरक्को आपको विन करने की कोशिश में आ रहा है, आपके हैंड ऑफ इन मैरिज विन करने के लिए आ रहा है। अब पोर्शिया फिर से घबरा जाती है। पोर्शिया बोलते हैं कि अगर मैं जो 5th पर्सन जो है यानी प्रिंस ऑफ मोरक्को को उतने अच्छे दिल से वेलकम कर सकती जितना मैं अच्छे दिल से उन चारों सूटर्स जो बाकी सूटर्स थे उनको गुड बाय कर रही हूं, तो बात ही कुछ और थी। अब पोर्शिया ये भी बोलती है कि अगर प्रिंस ऑफ मोरक्को का जो नेचर है वो एक सेंट के बराबर हुआ और उसके इरादे अच्छे हुए और उसका कंप्लेक्शन डार्क हुआ, कुछ भी हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्लेक्शन ऑफ डेविल इसलिए बोला गया क्योंकि डेविल्स को यूजुअली काला कंपेयर करा जाता था उन दिनों में। अभी भी यू कैन इमेजिन डेविल एज समथिंग डेंजरस ब्लैक। सो पोर्शिया बोलती है कि अगर उसका कंडीशन, उसका नेचर एक सेंट के बराबर रहा और उसका कंप्लेक्शन कोई भी हो, डार्क हो, कुछ भी हो, तो मैं उसे अपना गुरु मानूंगी, उसे मैं अपना एज अ सेंट मानूंगी उसे मैं, rather than my husband। अब पोर्शिया मॉकिंगली भी बोलती है कि जल्दी से हम जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते, नहीं तो ऐसे ही 1 by 1 सूटर्स आते रहेंगे, मुझे वो करते रहेंगे इन हैंड ऑफ मैरिज। तो आज का एक्ट 1 सीन तो यहाँ पर ही खत्म होता है गाइस। होप यू अंडरस्टूड द फुल वीडियो लेसन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आई वुड लाइक टू हियर द कमेंट्स एंड सो हैव अ नाइस डे।